states, and you would remarkably see that in some of our states in India, it is 18 times higher. So friends, we are looking at this as a problem of epidemic proportions. It's really a large problem, huge incidence in India, and Go Folic campaign addresses that top public health priority. About a word about folic acid. We all know about folic acid. Yes. Can we have the photos taken afterwards? This is a very important presentation. Please calm down for 5 minutes and let everyone listen to the presentation. And we'll have photos taken afterwards. Thank you. Okay. Yeah, we'll finish quickly. But folic acid is well known. What is not well known is that to prevent some of these birth defects, we have to take folic acid and give it to the mother to be prior to conception. So that's a message which is still, in spite of some efforts that we have been doing over the past few years, it is still not known. And that is what Go Folic will now do in a more organized and very aggressive manner. Okay, so I want to quickly draw your attention to this slide. So what is the potential of this Go Folic campaign? What can we achieve? We have the potential of preventing more than 25,000 children born with birth defects like neurotube defects every year. We will be able to prevent again thousands of cases of cleft lip palate. Then of course it will help us to achieve the Millennium Development Goal number 4 of the UN, which I spoke about, of reduction in childhood mortality. And so these are very enormous potentials. It's easier said than done, but with a national campaign like ours, and Spina Bifida Foundation is lucky to team up with a very vibrant world nutritional enterprise like Mayor Vita Biotics, and a very vibrant, very enthusiastic ambassador like Ravina Tandon for this effort that we will carry on over the next few years. So, this Go Folic campaign is a collaboration between Spina Bifida Foundation, the Mayor Vita Biotics, and a lot of people here, including our folic acid ambassador. We propose to undertake a number of activities in the coming year, some of which are listed here. This campaign will not be restricted to the urban population, but we will surely have some activities such as free counseling for patients, public meetings in rural areas. And we have selected a couple of them already, and in November, December, we probably will have a major activity in Sindhudurg, which is quite a backward area as far as tertiary care is concerned. Then we will have lecture series in women's colleges, in corporates. We will have some photo exhibitions, some street plays, multimedia campaigns. We also are liaising with state governments, and we will aim to establish a unit of Go Folic and of the Spina Bifida Foundation in every state in the coming months. So we all know, we know of people who eat to live. We know of people who live to eat. But what does Go Folic say? Go Folic says, eat to let live. So I think that's a very important message. Eat well, eat lots of folic acid. And once again, I thank Ravina Tandonji, who can be now called the Folic Acid Ambassador of India.
and I know she is fully capable of fitting into the shoes of this grand title. And we are sure that in the coming months and coming years, she will be a great source of support, and she will be the ambassador for many of these activities. Thank you very much. We came here to, as you all know from this presentation, we have seen staggering numbers. This is a very, very serious concern. While we see that India is a big country and there are most, highest incidences of spina bifida in India, the problem here is awareness. I wasn't aware of this until I met Dr. Karmakar. And I've been working in this area for the last 11, 12 years. So we all should realize how grave this area is, how important this work is, and just all unite together and work towards it. I was just speaking to a doctor gentleman this morning, and we were talking about the treatment options available now in India. I think it's not just the availability of the treatment, I think it's the accessibility. When you talk of rural India, when you talk of these states where the incidences are very high, the most important thing is to understand whether people know. A woman in fertility years, is she aware of what she should be eating? Does she know, is she being told by healthcare service providers that she needs to be on folic acid supplements right from the first trimester of pregnancy? Even with all these campaigns we do in the Western countries and in the UK, etc., I always speak to, whenever I address people, I always tell them, start a pregnancy supplement before you get pregnant. Because often a woman would not know for a few weeks before she was pregnant that she's actually pregnant. And that must be the most critical time. That is a time in the first trimester, which is the most crucial time where she should be taking folic acid, B12 and other B vitamins. So it's very important that we spread this message all along. Dr. Kiran Coelho is a senior obstetrician, and I'm sure most of you have heard of her and know her, to talk to us about folic acid, prevention, and so on. आप सबका यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के इस फंक्शन को बढ़ावा दिया है, इस कॉज को बढ़ावा दिया है। मैं स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन के साथ करीबन कितने सालों से जुड़ी हूँ? अभी 5 साल हो गए हैं मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ, और मैंने देखा है किस तरीके का काम इन्होंने किया है। साथ साथ काफ़ी इस मंच पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर करमाकर हैं, डॉक्टर किरण कोयलो हैं, हमारे साथ सुमन हैं, उनके पिताजी हैं। इन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है, स्पेशली हिंदुस्तान में। मैं दूसरों की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस। जब मेरी शादी हुई, सीधे विवाह के बाद ये हुआ कि ठीक है, अब सब सोचते हैं कि चलो परिवार शुरू करने का समय हो गया है, कर लेते हैं, लेट्स गो अहेड। लेकिन उसके पहले कितने हैं, कितनी माएँ हैं या कितने कपल्स हैं, कितने ऐसे दंपति हैं जो सोचते हैं कि हम परिवार शुरू करने से पहले हमने अपने स्वास्थ्य को चेक किया है कि नहीं। स्पेशली हम लड़कियाँ, एंड स्पेशली हम हीरोइंस तो वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ एक्सट्रीम डाइटिंग करती हैं, समय का कुछ इराटिक आवर्स ऑफ वर्क है, ऊंच नीच है, कहीं का शूटिंग कर रहे हैं, कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो हम कभी कभी अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर मैं एक मदर बनने वाली हूँ तो आगे अभी से मुझे क्या करना है। सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टेकिंग केयर फ्रॉम द बिगिनिंग। आई बिकेम प्रेग्नेंट इन जून, लेकिन उसके पहले मैंने इंटरनेट पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बैठ के बात की कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए। और पहली चीज़ मुझे बोली गई कि एटलीस्ट 4-5 महीने पहले जो मैंने शुरू की वो 2-3 चीज़ें थी, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी फोलिक एसिड। और वो फोलिक एसिड की गोलियाँ मैंने स्टार्ट की, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है जो अंत में आता है वो इतना बड़ा है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी गोली है जो कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं या अवेयर नहीं है। तो मोस्टली जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ हमारे देश में ये है कि चलो शहरों में भी ऐसे किस्से होते हैं, लेकिन गांव में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो बहुत ही
ज़रूरी है। स्पेशली जो माएँ गर्भवती होने वाली हैं या वो प्लान कर रही हैं, उनको ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात का। स्पेशली अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे जानकारी लें कि मुझे क्या क्या शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक नया जीव बन रहा है, आप उसको बना रहे हो। आपके बॉडी में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो जीव ले लेता है, आपके वाइटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड। एंड जैसे कि आज हमने सुमन को देखा, ये तो हमारी एक बहुत ब्रेव लड़की है, हमारे बहुत ब्रेव पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस चैलेंज को उठाया और बोला हाँ कभी भी she will lead an absolute normal life, and we are so proud that she's a journalist today. So please a big round of applause for Suman. It's very encouraging कि ऐसी भी कहानियाँ आती है, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिलते हैं, जो गांव-गांव में हैं, जिनको पता नहीं होता कि अब इसके बाद क्या करें। मेन चीज़ ये है जो फसाद की जड़ है जिसे हम कह सकते हैं, वो है फोलिक एसिड। एक सिंपल गोली से ज़िंदगी आसान हो जाती है, जैसे कि गो फोलिक कैंपेन का नाम है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर करमाकर ने कहा कि हमारा थियोरी है, यू विल स्टे दैट स्लोगन लाइन अगेन, eat well, Eat and let live. eat, I would add to it, I would say eat folic acid and let live. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी, I would add on that, that's why I wanted you to say it first because I wanted to add on that. तो ये जहाँ से मैं, जैसे कि मैंने शुरू किया कि I was one of those few lucky ones who I prepared myself in the beginning. I prepared for my pregnancies, and touch wood, God has been kind to me. But there are a lot of people who don't have that opportunity. So I request you as people of the media, I know this might be a very boring event for you all, that there's no Raj Gana and there's no stars throwing controversies and there is nothing. But please realize that you all are the medium. You are the medium कि आपसे जानकारी फैल सकती है। तो खाली ये प्लीज़ पेपर में मत लिख दीजिएगा रवीना एक इवेंट पे आई थी, थोड़ा इवेंट के बारे में लिखिएगा कि क्यों मैं इवेंट पे आई थी। और आप अगर ये, स्पेशली यू गर्ल्स, यू आर मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्रेस, द गाइज ओवर हियर, do it not only for yourself, do it for people, do it for the country, do it for children who will be born ahead and will lead a normal, healthy life. So I request the members of the media, please encourage us with this initiative and spread this good word. Thank you very much. से बोलूँगी, don't worry, हाँ, roll. सो आप लॉस कर रहे हैं तो फोलिक जो है उसके बारे में इस संस्था के साथ मैं पिछले 5 साल के साथ जुड़ी हुई हूँ, और जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना, इन लोग भी काफ़ी काम कर चुके हैं, नॉट ओनली फॉर प्रिवेंशन लेकिन उसका जो क्योर भी है। लेकिन ऑलवेज जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि वंस द हार्म इज़ डन तो बहुत मुश्किल होता है पूरा प्रोसेस रिवर्स करना। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी, आप अगर इंटरनेट पे भी चेक करेंगे, एक ऐसी बीमारी है जो एक बार बच्चे के अंदर आ जाए तो पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है और मोस्टली लिम्स को भी अफेक्ट करता है बिसाइड्स अदर ऑर्गन्स। तो ये एक चीज़ है जो हम माएँ स्पेशली बिफोर प्रेगनेंसी केयर जिसे कहते हैं, प्री नेटल केयर जिसे कहते हैं, अगर थोड़ा उस पर ध्यान दें और हम ये मैसेज आगे बढ़ाएं तो काफ़ी बच्चे स्वस्थ पैदा हो सकते हैं और ये इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे। आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है, चाहे गांव-गांव में काफ़ी औरतें प्लान नहीं करती हैं या सडनली प्रेग्नेंट हो जाती हैं या सोचती नहीं है कि चलिए हम थोड़ा प्लान रखेंगे इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगर आप हेल्दी होंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। गर्भ में ही उसको वो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स और फोलिक एसिड मिलेंगे जो उसके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी गोली है, बहुत सस्ती सी भी गोली है, ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ही महंगी ये महंगा उपाय है। तो मेरी एडवाइस यही होगी, जितनी औरतें जो भी प्लान कर रही हैं आगे प्रेगनेंसी, प्लीज़ ज़रा अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे जानकारी लें और एक सही ढंग से आगे कदम बढ़ाएं। आप क्या इस प्रोजेक्ट हाँ, ये धीरे आगे मैं ऐसे होती जा रही थी। ऐसा इस प्रोजेक्ट में क्या था कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गई, मतलब किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया इस चीज़ में? देखिए, मैं जो ये डॉक्टर्स की पूरी संस्था है, ये जो संस्था है ये डॉक्टर्स ने ही शुरू की है। इनके हेड हैं डॉक्टर संतोष करमाकर, जो मेरे गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नानावती, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं और बल्कि आज हैं यहाँ पे। जब डॉक्टर करमाकर आए मुझसे मिलने, तो हाँ, मुझे इतनी जानकारी ज़रूर थी कि फोलिक एसिड क्या कर सकता है और फोलिक एसिड खाने से क्या हम किस तरीके का बचाव कर सकते हैं।
लेकिन जब उन्होंने मुझे किस्से दिखाए और जब मैं काफ़ी पेशेंस से मिली, जो पिछला इनका फंक्शन हुआ था उसमें काफ़ी पेशेंट्स भी आए थे और कुछ मेरे घर भी आए थे मिलने। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स थे जो आए थे, काफ़ी ऐसी माएँ थी जिन्होंने कहा कि आज हम अपने बच्चों को सफ़र करता हुआ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी गलती कि हमने बस फोलिक एसिड की गोली नहीं खाई और उसकी वजह से हमारे बच्चों का ये हाल है। तो जैसे कि डॉक्टर तोता जो आए हैं औरंगाबाद से, वो भी कह रहे थे कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं सकते हैं लेकिन वो लिटरली रेंगते हुए आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ जैसे कि व्हीलचेयर, गाँव में व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल नहीं हैं इन पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत दिल को हिला जाने वाली बातें हैं। एंड आई थिंक अगर हम सब, मैं खुद अपने बारे में नहीं कहती हूँ, मैं मीडिया से भी कहती हूँ कि आप मेन माध्यम हैं जहाँ आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप ये गांव-गांव में बात फैलाएं कि फोलिक एसिड ज़रूरी है बच्चों के लिए, आप अगर गर्भवती होने वाली हैं तो पहले से ही शुरू कर दीजिए, अगर नहीं शुरू किया है तो अभी भी तुरंत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे और आपके लिए स्वास्थ्य की बात है। सिंपल सी बात है।